اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد. معزز اور محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی شب آپ بخوبی واقف ہیں کہ اسلام اور مسلمین اور مؤمنین کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ ان تمام افراد کے لیے کہ جن کے دلوں میں انسانیت پائی جاتی ہے، نہایت درجہ درد اور الم کی رات ہے. جناب ام المؤمنین خطیۃ الکبریٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہا کی شب وفات ہے، اور آپ کا اس دنیا سے رخصت ہونا سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہایت درجہ سخت اور المناک تھا. آج ہم سب اپنے پروگرام کا اور ان سوالات کے جواب کے سلسلے کو شروع کر رہے ہیں اس عظیم المرتبت شہزادی کے سوگ کے ساتھ کہ جن کی اولاد کی محبت ہم سب کے لیے ایمان کا حصہ قرار پائی ہے. آئیے چلیے سوالات کا آغاز کریں کہ جو سوالات ہمارے برادران اور ہمارے دوستوں کی طرف سے پوچھے گئے ہیں. پہلا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی خاتون جو پریگننٹ ہو، کیا اس کے لیے روزہ رکھنا صحیح ہے؟ آیت اللہ العظمیٰ آغا ثانی حفظہ اللہ تعالی کی نگاہ میں اگر اس کا یہ بچہ جو اس کے شکم میں ہے اس روزے کی بنا پر یا خود اس خاتون کو اس روزے کی بنا پر کسی قسم کے ضرر یا نقصان کا خطرہ ہو، تو پھر اس صورت میں اس خاتون کے لیے روزہ نہیں ہے. اور ماہ مبارک رمضان کے گزر جانے کے بعد جب اس کے وہاں ڈیلیوری ہو جائے اور اس کے لیے روزہ رکھنا ممکن ہو تو پھر اس کو اس روزے کی قضا کرنی ہے. لیکن البتہ ماہ مبارک رمضان میں اس کو اس چھوٹے ہوئے روزے کے لیے اس کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے کہ وہ فدیہ یعنی 750 گرام اناج فقیر اور غریب کو دے. سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص رات میں نیت نہیں کر پایا تھا اور صبح میں اس کی آنکھ نہیں کھلی اور وہ سوتا رہ گیا اور دوپہر میں اس کی آنکھ کھلی، تو اب اس کے لیے روزہ رکھنے کی کیا صورت ہے؟ یہ انسان جو رات میں سو گیا اور روزے کی نیت نہیں کر پایا تھا اور اب اگلے دن دوپہر میں جاگا ہے، اس کے لیے 3 صورتیں ہیں. در واقع یہ 4 صورتیں ہیں کہ جن کو 3 صورتوں میں بیان کیا جاتا ہے. پہلی صورت یہ ہے کہ اگر اس شخص کی آنکھ ظہر سے پہلے کھلے اور یہ شخص ظہر کے بعد اٹھا ہے، ظہر سے پہلے اٹھ گیا ہے، تو اب اس شخص کے لیے اپنا روزہ رکھنے کی گنجائش ہے اور وہ نیت کرے گا اور پھر فوراً اسی وقت سے اپنے روزے کو شروع کر دے گا، جو در واقع صبح سے اس کے لیے شمار کیا جائے گا. اور دوسری صورت ہے کہ جو کل ملا کے 4 کو 2 بنایا گیا، کہ دوسری صورت ہے کہ اگر ظہر کے بعد اس کی آنکھ کھلے تو پھر اس کو کیا کرنا ہے. اگر ظہر کے بعد اس کی آنکھ کھل رہی ہے اور نیت صبح سے پہلے اس نے نہیں کی تھی تو پھر اس کے لیے احتیاط واجب یہ ہے کہ قربت مطلقہ کے ساتھ امساک کرے اور پھر بعد میں ماہ مبارک رمضان کے گزر جانے کے بعد اسے اپنے اس روزے کی قضا کرنی ہے. تو قربت مطلقہ پہلے میں واضح کر چکا ہوں، پھر اس وقت واضح کر دیتا ہوں کہ وہ تمام چیزیں جن سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے
उन तमाम चीज़ों को क़ुर्बत मुतलक़ा की नीयत से, यानी इस इरादे के साथ कि चूँकि परवरदिगार ने मना किया है लिहाजा इन सारे कामों को मैं छोड़ रहा हूँ, इस नीयत के साथ वो शाम तक, गुरूब तक, जिस वक्त आम लोग रोज़ा खोलते हैं उस वक्त तक उसे इमसाक करना है, यानी इन तमाम चीज़ों से परहेज़ करना है। और फिर माह मुबारक रमज़ान के गुज़र जाने के बाद उसे अपने इस रोज़े की क़ज़ा करनी है। एक और सवाल ये है कि अगर कोई शख्स ये बात भूल जाए कि माह मुबारक रमज़ान है और फिर उसको दिन के किसी हिस्से में ये बात याद आए कि मैं तो भूल गया था, ये तो माह मुबारक रमज़ान है, ऐसे मौके पर उसकी क्या ज़िम्मेदारी है? देखें, वो इंसान के जो इस तरह से ये भूल गया था कि माह मुबारक रमज़ान है और फिर ज़ाहिर है कि वो रियायत नहीं कर पाया और न ही ये रोज़ा रख पाया, अब उसकी जो सूरतें हैं उनमें से पहली सूरत ये है कि वो कब मुतवज्जे हुआ। ये अगर ज़ोहर की नमाज और अज़ान से पहले जो अव्वल वक्त है ज़ोहर का, अगर उससे पहले मुतवज्जे हुआ है तो फिर अब उसको एक बात पर और गौर करना है कि उसने सुबह में जो रोज़े का वक्त है उस वक्त से लेकर इस वक्त तक जब वो मुतवज्जे हुआ, कोई ऐसा काम कि जो उसके रोज़े को तोड़ने वाला हो, अगर वो अंजाम ऐसा कोई काम दे चुका है तो फिर ऐसी सूरत में वो रोज़ा नहीं रख सकता है और उसको तमाम मुब्तिलात सौम से परहेज़ करना है और बाद में माह मुबारक रमज़ान के गुज़र जाने के बाद उसको इस रोज़े की क़ज़ा करनी है। तो पहला हुक्म तो वाज़े है कि अगर ज़ोहर से पहले मुतवज्जे हो जाए कि ये माह मुबारक रमज़ान है और उसको रोज़ा रखना चाहिए था और फिर कोई मुफ्तिर वो शय के जिससे रोज़ा टूट जाता है उसने अंजाम दे लिया हो तो फिर उसकी ज़िम्मेदारी है कि रोज़ा नहीं रखेगा, लेकिन कुछ खाए पिएगा भी नहीं और वो तमाम चीज़ें कि जिनसे रोज़ा टूटता है उनसे परहेज़ करेगा। माह मुबारक रमज़ान के बाद उस दिन के रोज़े की क़ज़ा करेगा। अगर ये इंसान ज़ोहर की अज़ान से पहले जो अव्वल वक्त है उससे पहले मुतवज्जे हो गया कि ये माह मुबारक रमज़ान है और कोई एक ऐसा अमल के जिससे रोज़ा टूट जाता है उसे उसने अंजाम भी नहीं दिया है, तो फिर उस सूरत में उसी वक्त वो रोज़े की नीयत कर लेगा और फिर उसका रोज़ा उस दिन का सही होगा, बाद में उसे क़ज़ा नहीं करनी है। तीसरी सूरत, अगर इस शख्स को रोज़े के या माह मुबारक रमज़ान के बारे में ज़ोहर की अव्वल अज़ान के बाद पता चला और तब मुतवज्जे हुआ कि ये माह मुबारक रमज़ान है, उसे तो रोज़ा रखना चाहिए था। अब यहाँ पर अगर उसने मुफ्तरात सौम में से कोई अमल अंजाम दिया हो या मुफ्तरात सौम में से कोई अमल अंजाम न दिया हो, हर दो सूरत में उसकी ज़िम्मेदारी ये है कि वो एहतियात वाजिब ये है कि रोज़ा नहीं रखेगा और रजा की नीयत से, यानी शायद अगर उसने कोई मुफ्तिर काम अंजाम नहीं दिया हो तो रजा की नीयत से वो उस दिन का रोज़ा रख सकता है, लेकिन ये जहन में रहे कि उसको बाद में माह मुबारक रमज़ान के गुज़र जाने के बाद उस दिन के रोज़े की क़ज़ा करनी है। तो गोया यहाँ पे चार सूरतें पैदा हो रही हैं। ज़ोहर की अज़ान से पहले मुतवज्जे हुआ या ज़ोहर की अज़ान के बाद मुतवज्जे हुआ। ज़ोहर की अज़ान से पहले अगर मुतवज्जे हुआ है और कोई मुफ्तिर काम जो रोज़े को तोड़ देता है उसने अंजाम दिया हो तो फिर रोज़ा नहीं रखेगा, बाद में उसकी क़ज़ा करेगा। अगर कोई मुफ्तिर काम अंजाम नहीं दिया है और ज़ोहर से पहले मुतवज्जे हो गया है तो वो उस दिन की नीयत कर लेगा और रोज़ा रखेगा। लेकिन अगर ज़ोहर की अव्वल अज़ान के बाद उसको ये पता चला, एहसास हुआ, मुतवज्जे हुआ कि ये माह मुबारक रमज़ान है, तो अगर सुबह से कोई मुफ्तिर अंजाम नहीं दिया है तो उस सूरत में एहतियात वाजिब की बिना पर रजा की नीयत से वो रोज़ा रख ले, लेकिन बाद में क़ज़ा बजा लाए। और इसी तरह से अगर ज़ोहर की अव्वल अज़ान के बाद मुतवज्जे हुआ और उसने कोई मुफ्तिर काम भी अंजाम दिया था तो फिर वो रोज़ा नहीं रख सकता है। माह मुबारक रमज़ान के बाद उसे उस दिन के रोज़े की क़ज़ा करनी है। ये चार सूरतें हैं, लेकिन
सबसे अच्छा तरीक़ा जो इंसानों को एक दूसरे को मुतवज्जे कराते रहना चाहिए, माह मुबारक रमज़ान की ज़रूरतों में से एक ज़रूरत ये भी है कि मुमिनीन एक दूसरे को इस बात के लिए मुतवज्जे कराते रहें कि माह मुबारक रमज़ान आ चुका है, रोज़े वाजिब हैं, लिहाजा एक दूसरे के मुतवज्जे कराने की बिना पर शायद मुमकिन है कोई एक ऐसा इंसान जो भूल गया हो, कोई एक ऐसा इंसान जो मुतवज्जे नहीं है, कोई एक ऐसा इंसान के जिसके जहन में बात नहीं आ पा रही है, वो भी उस दिन के रोज़े को रख लेगा और उसका सवाब भी उस इंसान को मिलेगा जो इस रोज़े की तरफ मुतवज्जे करा रहा है। लिहाजा ये जो आज के दौर में सोशल मीडिया का बहुत सारा ज़रिया हमारे पास है, टीवी के ज़रिए से, मोबाइल के ज़रिए से, हत्ता मोबाइल में भी व्हाट्सएप के ज़रिए से, टेलीग्राम के ज़रिए से, फेसबुक के ज़रिए से, कंप्यूटर के ज़रिए से, किसी न किसी ज़रिए से इंसान एक दूसरे को मुतवज्जे कराता रहे ताकि उसको एहसास रहे और इस माह मुबारक रमज़ान के रोज़ों की बरकतों और माह मुबारक रमज़ान की फजीलतों से ये इंसान महरूम न होने पाए। आज के दौर में जो एक सबसे बड़ी ज़रूरत है वो इसी बात की है कि इंसान ऐसे माहौल में, ऐसे घर में, ऐसी जगह पर, ऐसे पड़ोस में, ऐसे इलाके में जाकर ज़िंदगी गुजारे कि जहाँ पर मजहबी या रिलीजियस एक्टिविटीज़ के बारे में उसकी तवज्जो पूरी तरह से हो जाए। मामूलन लोग वहाँ पर भूल जाते हैं या मुतवज्जे नहीं होते कि जहाँ पर उनके लिए ऐसे मौक़े फराहम न हो पा रहे हों कि इंसान मुतवज्जे हो। लिहाजा कोशिश करनी चाहिए कि इंसान उन एरियाज़ को चूज़ करे और उन एरियाज़ में जाकर रहे जहाँ पर उसके लिए भी आराम रहे और बच्चों के मकतब के लिए भी उसको आराम रहे। अगला सवाल ये पूछा गया है कि अगर कोई शख्स माह मुबारक रमज़ान के रोज़े की नीयत करना चाह रहा है तो इस नीयत के लिए आखिरी वक्त क्या है, कब तक उस इंसान को माह मुबारक रमज़ान के रोज़े के लिए नीयत करने का इख्तियार है। ये जो इख्तियार दिया गया है वो अव्वले अज़ान सुबह से पहले तक का वक्त है, यानी जब अज़ान अभी नहीं हुई है तब तक उसको अपनी नीयत के कर लेने, इरादा कर लेने, क़स्द कर लेने का इख्तियार है। वो उस वक्त तक चाहे तो क़स्द कर सकता है, इरादा कर सकता है। यानी इससे मुराद ये है कि जिस मौके पर सुबह की अज़ान हो रही हो वो रोज़े के लिए इमसाक कर चुका हो, रोज़े के लिए तमाम मुफ्तरात को तर्क कर चुका हो और वो भी मुफ्तरात को उसने तर्क किया हो अल्लाह के लिए, मुफ्तरात को उसने तर्क किया हो परवरदिगार के लिए। ये शर्त है। इस शर्त के साथ अव्वले अज़ान सुबह के मौके पर उससे पहले उसकी नीयत मुकम्मल हो जानी चाहिए और फिर जिस मौके पर अज़ान दी जाए वो हालत रोज़ा में होना चाहिए। सवाल ये किया जाता है, जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कि आखिर नीयत की कैसे जाए, कैसे नीयत करें कि हम माह मुबारक रमज़ान का रोज़ा रख रहे हैं। मरजए आली क़द्र आयतुल्लाह उस्मा गैसी सानी हफ़िज़हुल्लाह ताला ने जो तरीक़ेकार बयान किया है उसमें इंसान के लिए दिल से इरादा ज़रूरी है कि इंसान ये मुसम्मम इरादा कर ले कि मैं माह मुबारक रमज़ान का ये रोज़ा रख रहा हूँ क़ुर्बतन इलल्लाह। ये नीयत अगर उसके इरादे में शामिल है और वो इस इरादे के साथ रोज़ा रख रहा है तो यही इरादा उसका नीयत है। ज़बान से अदा करना या किसी से बयान करना या कहीं पर लिख देना या कहीं पर किसी से कह देना, इन सारी चीज़ों में से किसी की शर्त नहीं है। सिर्फ इंसान का इरादा जो दिल की गहराई से किया जाए और उस दिल की गहराई की बिना पर इंसान अल्लाह के लिए उस अमल को अंजाम दे, यही काफ़ी है। लेकिन एक इसमें क़ैद है, एक शर्त है कि इंसान ये जो इरादा कर रहा है, ये जो नियत कर रहा है वो खुलूस के साथ बजा लाए। यानी उसके इरादे में ये बात शामिल होनी चाहिए कि मैं ये रोज़ा सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए रख रहा हूँ। किसी और वजह से अगर इंसान नियत किसी और तरह की है तो उस नियत की बिना पर उसके लिए
روزہ یقینی طور کے اوپر مشکلات کا سبب بنے گا۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر روزے کو کسی دوسرے کو دکھانے کے لیے رکھا جائے، نیت یہ ہے کہ میں روزہ رکھوں گا تو دوسرے میرے روزے کی تعریف کریں گے، دوسروں کو اچھا لگے گا، یا یہ نیت ہو کہ دوسرے روزہ رکھیں میں کیسے پیچھے رہ سکتا ہوں، میں بھی روزہ رکھ لیتا ہوں، اس قسم کی وہ نیتیں جو ریاکاری شمار ہوتی ہیں، ان نیتوں کا کیا نقصان ہے؟ آغا کی نگاہ میں، آیت اللہ العظمیٰ آغا ثانی حفظہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں نیت میں قصد قربت ضروری ہے، نیت کو اخلاص کے ساتھ بجا لانا ہے، خلوص کے ساتھ انسان کو نیت کرنی ہے۔ اور اگر ریاکاری کے ذریعے سے اس نے روزہ رکھا ہے اور ریاکاری کے لیے روزہ قرار پا رہا ہے تو وہ اطمینان رکھے اس کا یہ روزہ باطل ہے، اس کا یہ روزہ قابل قبول نہیں ہے۔ لہٰذا اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی عبادتوں اور اپنی اطاعتوں کو اس انداز میں انجام دے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہمارے یہ روزے، ہماری یہ بندگی، ہماری یہ عبادت قبول ہو جائے۔ آج کی یہ عظیم رات، یہ غمناک رات یقیناً اس شہزادی کو یاد کرنے کی رات ہے کہ جس شہزادی کا عالم انسانیت پر، عالم اسلام پر، بلکہ یوں کہہ لیا جائے کہ اسلام کا پیغام جہاں جہاں بھی پہنچ رہا ہے ان سب پر احسان ہے۔ آج آپ کی شب وفات ہے، ہم سب اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں جناب ام المؤمنین کی اس عظیم جدائی کے موقع پر پرسہ پیش کرتے ہیں، خاص طور سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کہ جنہوں نے جناب ام المؤمنین کی وفات پر اس پورے سال کو عام الحزن قرار دیا تھا، رونے والا سال، گریہ کرنے والا سال، غم منانے والا سال۔ لہٰذا ہم سب بھی سوگوار ہیں، غمناک اب موقع ہے، لہٰذا آئیے چلیے اپنے زمانے کے امام آقا ولی عصر عجل اللہ تعالی فرج و شریف کی بارگاہ میں چلیں اور مولا کی خدمت میں اس موقع کا پرسہ اور اس موقع کی تعزیت پیش کریں۔ پروردگار ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کے مخلص خدمت گزاروں میں شمار فرما، اور پروردگار ہم سب کو دین کے خدمت گزاروں میں ہمیشہ قرار فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔